love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hello everyone, myself Harshit Kumar. Today I'm going to making a assignment. First of all, I'm showing the result of my assignment. All the steps. First of all, I am taking 4 libraries. You can see there. The first is CV2, second is pandas, third is math, and four is for time. You can take more if you want to more add something. I am taking only 4. So first of all, I am taking CV2 file. CV2 file I am taking 4 to click on the image. I have to take an image. I can click on the image and taking points. So I am taking the coordinates. So I am taking CV2 library. Then second, I am taking pandas. The pandas library, because I have to which coordinate I have find. I have to save in an Excel file. So I am taking the pandas library, and these library you have to don't hesitate at the way they are not fixed. You can search on Google and you can find more and more than. And the third is I am taking third file import math. I am taking math for because I have to find distance between 2 point maximum distance between 2 maximum points. Which points I'm clicking on the screen, I have to take maximum distance in these points. So I'm taking math library, and this is time library. So calculate the time I have to calculate the time between executing of my program when I'm running my program, to how many time it is taking in execution. There is a the count is a variable. I'm taking a count variable because I am taking the buttons. When I'm clicking on the screen, there is a count variable, and I'm taking some list, and I am taking a list which name is my list. I am taking list and my dictionary. This is a dictionary. I'm taking this dictionary, and this is vacant. I can fill out or also. But then these are dictionaries and the variables, and b as is our coordinates. I'm defining a function. This is the function define I'm telling about after some time. Then first of all, I'm going to on this thing. This is image. I'm taking a variable name image equals to cv2 dot in read, and cv2 I'm using the cv2 contact because I'm using the cv2 libraries because I have to show my image on the screen. I have to open my image, so I'm taking cv2 file, and the cv2 dot in read I am read means he's opening the I is reading the our file hers name, which file name is hers jpeg, and he is reading the file jpeg. And cv2 dot I am sure that I am using the cv2 libraries a function that is cv2 dot I am show is showing our image. Then third, cv2 dot set mouse callback. I am taking this function, function for of this is a libraries pointed there of cv2. I am using this for image. I am showing the image on this is a function. This is called the function image. I am taking the image, and this is the function I am taking to call the function. This call is the function is here. You can see this, and the function is define touch on, and there are 4 to 5. There are 4 to 5 parameters: event, a, b, touch, and hello. I'm taking randomly. You can take anything as you want. I'm taking global count. I'm taking the count where I'm defined here count, and I'm taking is it is global. I'm giving it to global. There is a variable. This is not anything else. This is only variable. We have 2 types of variables: global and the normal, and this is the global one. I'm taking it as a global, and I am also taking the dictionary to global. Then I'm taking this if event equals to cv2 file. So cv2 file dot event underscore left button down. When I'm taking the this, if this condition is true, cv2 फाइल में जब लेफ्ट बटन डाउन करेंगे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आगे स्टेप्स वाइज आएगा. तो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया, उसमें मैंने क्या क्या प्रिंट. So this is the print statement. I am printing this statement because I have to take the coordinates. So I am taking this print statement a comma b and a comma underscore a comma underscore b. Yani ki I am taking a comma b and the separation equals to
I am not giving any I am don't giving any space between this because I have to taking I am giving separation as sep append a comma b. तो मैंने इसे एज ए टपल ले लिया, इसे मैंने क्या कर दिया एज ए टपल कर दिया, जो भी अपना जो कोऑर्डिनेट्स है उसे मैंने एज ए टपल कर दिया है। फिर मैंने क्या किया माई डिक्शनरी ए को डॉट अपेंड ए, तो ये माई डिक्शनरी में जो ए था उसमें अपेंड क्या कर देगा ए को कर देगा एज इट इज, माई डिक्शनरी बी में क्या कर देगा अपेंड बी कर देगा। फिर आगे मैंने दिखाया कि फॉन्ट लिया है मैंने, ये भी एक लाइब्रेरी फॉन्ट एक वेरिएबल ही लिया है मैंने, उसके इक्वल्स टू मैंने क्या किया cv2 डॉट फॉन्ट इटैलिक। आप इसमें फॉन्ट कुछ भी ले सकते हो, मैंने cv2 फाइल से उस cv2 लाइब्रेरी था उसका यूज करके मैंने फॉन्ट ऑफ इटैलिक ले ली है। उसके आगे मैंने क्या किया cv2 डॉट पुट टेक्स्ट, जो भी अपना टेक्स्ट आएगा उसको क्या करना है अपने को पुट टेक्स्ट इमेज स्ट्रिंग काउंट, स्ट्रिंग काउंट में नहीं स्ट्रिंग के जो काउंट है उसे एज ए स्ट्रिंग लेके a कोमा b में a कोमा b के अकॉर्डिंग रख देना है, इस वजह से भी अपना कोऑर्डिनेट्स है उसको a कोमा b में रख देंगे। फिर मैंने क्या किया cv2 डॉट आई एम शो इमेज, फिर मैंने क्या करवाया इमेज को शो करवाया, इसके साथ जो काउंट को है काउंट को मैं क्या किया इंक्रीमेंट कर दिया यानी कि +1 कर दिया, यानी कि जब ये फंक्शन चलेगा जब भी ये फंक्शन रन करेगा जब भी इस फंक्शन पे रन आएगा, जैसे भी यहाँ से टच ऑन किया जैसे cv2 डॉट सेट माउस कॉल बैक किया, यानी कि जैसे अपन क्लिक करेंगे एक बार जैसे स्क्रीन पे क्लिक किया तो क्लिक करते ही वापस इसी फंक्शन को कॉल कर देगा cv2 कॉल की मेरे को वापस क्लिक करो, एज इट इज आप जितने बार क्लिक करना चाहते हो उतनी बार क्लिक कर सकते हैं अपन इसलिए। और जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा यहाँ से फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे कॉलिंग आएगा फंक्शन को टच ऑन पे, तो यहाँ पे सब कुछ होगा, यहाँ पे पहले टच काउंट क्या था 0 था, तो जैसे ही इसमें आया तो इस काउंट क्या हो जाएगा, फिर एक बार एग्जीक्यूशन हुआ, एग्जीक्यूशन फर्स्ट ऑफ क्या हुआ 0 से हुआ, तो यहाँ से 0 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे आया, तो ये काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 का मींस क्या हुआ, काउंट इक्वल्स टू इसका मींस क्या हुआ, चलो यहाँ लिख देते हैं अपन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हुआ COU काउंट प्लस 1, इसका मींस ये होता है, ये हैज लगा के अपन क्या कर सकते हैं इसे हैज लगा के अपने इसे कमेंट कर, मैंने इसे कमेंट के रूप में लिख दिया है काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, इसका मींस क्या हुआ मैंने काउंट को इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दिया, यानी कि पहले काउंट कितना था 0 था उसमें मैंने अब एक इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट प्लस 1 से किया तो यहाँ पे क्या हो गया काउंट प्लस 1 हो गया। एज इट इज अपन कहाँ पे आ गए थे यहाँ तक हो गया था टच ऑन हो गया था। अब फिर मैंने cv2 डॉट वेट की किया यानी कि एक वेट की लगा दी, यानी कि cv2 फॉर लाइब्रेरी का ही एक फंक्शन है उसका यूज करके मैंने इस डिफॉल्ट लगाया है। एज इट इज cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, जैसे मैं किसी विंडो जैसे ही किसी क्लिक करूंगा तो ये क्या कर देगा सभी विंडोज क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा। p इक्वल्स टू मैंने टाइम पर डॉट मैंने जहाँ पे एक लाइब्रेरी ली थी टाइम का यूज किया था, तो इसमें इसी का अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम ले लिया है, जैसे ही अपन स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम क्या होगा वो ले लेगा p में वो सेव हो जाएगा। फिर मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट को क्या किया मैंने पांडास लाइब्रेरी किसके लिए यूज की थी अपन ने पांडास के यूज किया था, ताकि जो भी अपन पॉइंट ले वो कहाँ पे फाइल सेव हो जाएगा एक्सेल फाइल में। सो मैंने यहाँ पे क्या पांडास को डाटा फ्रेम में क्या किसके माई डिक्शनरी कहाँ गया ये वाला जो माई डिक्शनरी था उसमें पॉइंट्स क्या थे a, b यानी कि x, y कोऑर्डिनेट्स अपने जो थे वो फाइल में वो पॉइंट में सेव हो गए। फिर पॉइंट डॉट टू एक्सेल जो से अपना वो पॉइंट वेरिएबल लिया था अपने पॉइंट में डॉट टू एक्सेल में क्या कर दिया एक्सेल फाइल डॉट एक्सएलएस, अपना जो भी पॉइंट्स आएंगे तो उसको अपन कहाँ सेव करना चाहते हैं उसके लिए मैंने ये क्या किया टू एक्सेल साइज में, और एक्सेल फाइल का नाम मैंने क्या रखा है एक्सेल फाइल रख लगा है मैंने जो पीसी में यूज कर रहा हूँ अभी, जो एक्सेल फाइल मैंने बनाई है वो मैंने एक्सेल फाइल के नाम से रख रखी है। तो दिस इज एंड देन ये तो क्या हो गया अपना कोड की एग्जीक्यूशन यानी कि पॉइंट क्लिकिंग ऑन स्क्रीनिंग ऑन द और अपने कोऑर्डिनेट्स लेना, यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात करते हैं अपन अपने को एक चीज भी दी थी क्या कि दो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पे अपने को क्या करना था दो पॉइंट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना था एक लाइन से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया एक मैक्सिमम डिस्टेंस का नाम से एक वेरिएबल बनाया उसको एक वैल्यू दे दी -1, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसे एक एज इट इज -1 वैल्यू दे दी। देन मैंने दो टपल्स बनाए ग्रुप यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ले ली मैंने से और ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 ले ली, इसे टपल्स के रूप में मैंने बना दिया टपल्स बना दिया। और फिर मैंने एक लूप लगाया फॉर फर्स्ट ऑफ लूप क्या लगाया मैं फॉर टपल 1 इन माई लिस्ट। अब जब माई लिस्ट में टपल 1 जाएगा तो उसमें भी मैंने एक ग्रुप लगा दिया फॉर टपल 2 इन माई लिस्ट। और फिर इसमें क्या कर रहा है ये temp इक्वल्स टू मैच दो डिस्टेंस टपल 1 को टपल 2। अब यानी कि ये क्या करेगा तो अपने जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाले दो पॉइंट आए उनको ऐसे जो भी अपने जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो उसमें टपल 1 और टपल 2 में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है यानी कि मैथ दो डिस्टेंस अपन मैंने यहाँ पे मैथ डिक्शनरी का यूज किया है। और फिर ऐसे ही ये तो एक मैथ लाइब्रेरी का यूज करके मैंने क्या किया डिस्टेंस निकाली टपल 1 और टपल 2 के बीच में। अगर टेम्प क्या था मैंने एक वेरिएबल ले लिया
ग्रेटर देन मैक्सिमम डिस्टेंस, तो क्या होगा, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू टेम्प हुआ तो ग्रेटेस्ट वन इक्वल्स टू टपल वन हो जाएगा और ग्रेटेस्ट टू इक्वल्स टू टपल टू हो जाएगा। एज इट इज मैंने यहाँ पे ये यानी कि यहाँ पे ये अपना प्रोग्राम है टू टेकिंग टू मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फिर मैंने क्या किया, cv2 डॉट लाइन। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन की बात मैंने बात बताई थी कि अपन जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे तो अपने को क्या दिखना चाहिए, एक लाइन दिखनी चाहिए बिटवीन टू मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट के बीच में। तो मैंने क्या किया, cv2 डॉट लाइन, तो इसमें क्या हो गया, इमेज गोट, ये मैंने क्या क्या लिया, ग्रुप वन, ग्रुप ये ग्रेटेस्ट वैल्यू वन, grt1 gr22, और ये grt1 gr22 क्या हो जाएगा, टप्पल वन और टप्पल टू, टप्पल वन और टप्पल टू क्या हो गया, टप वन और टप टू क्या लिया था पहले, ये देखो यहाँ पे टप वन और टप टू था, डिस्टेंस बिटवीन दो मैक्सिमम जिसमें डिस्टेंस आएगी वो ले लेंगे और उनके बीच में क्या कर देंगे, लाइन कर देंगे, अपने यहाँ पे ये लाइनिंग हो गई। फिर बात करते हैं cv2 डॉट आई एम शो। अब इस इमेज को वापस क्या बोलेंगे, इमेज को वापस से दिखाओ सर। When I'm running and pressing all these buttons, when I'm pressing any randomly my mouse cursor and click there, this is giving me the outputs, and this is giving me the counting one to as much I'm counting. And when, because I'm taking a count variable and increment regularly, so this is giving us the resultant parts and the my results. I'm taking the as I'm taking these points on my screen. This is the image. I am taking these points on the screens, and this is the blue line is the maximum distance between 2 points. I am taking 502 points when I'm taking these, and the maximum distance between 2 points is, this is the blue line shows the maximum distance between 2 points, and this is the output, and this is the, and these are the points, and the execution time shows us now a second, and this screen shows me that the execution time and the result of this is the time 0.305. This is my code's execution time, and the maximum distance is 9790. This is according to the coordinates, and the excel file is there. Here is the excel file, and the 502 points are saved in this excel file, and you can say this the coordinates of f comma b as a, I'm saving in a comma b. You can say these, you can see these 012 comma and then 502 points in my screen. This is the 502 points, and these all are